Okay. Yep. Fine. I'm here. Okay, guys. So I hope the angle is working out for you guys. I hope you guys can see me clearly and hear me clearly out, because I am gonna make a video for an hour or so, something like that. And I don't want this. I don't want to record this video again. I don't think I'll record it again. So even if it's not that good looking, just listen to it, okay? And I hope it helps. अब मैं इस वीडियो में ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा. इंग्लिश में बात करूँगा मोस्टली, बिकॉज मेरी हिंदी कभी भी निकलती है, मेरी इंग्लिश कभी भी निकलती है. दैट्स वन पॉइंट. द अदर पॉइंट इज टेक दिस मोर एज अ ब्रदरली एडवाइस, नॉट एज समथिंग दैट यू हैव टू हार्ड एंड पास डू, नॉट एज समथिंग कि यार नहीं ये नहीं किया तो सही नहीं रहेगा वगैरह वगैरह. The other thing is, you don't have to fixate to the numbers. You can adjust the numbers according to your particular situation, and you can make out your own numbers on where you want to stand and what you want to do in life. You can also take an easier approach to this. You can also take a milder approach to this. I might have a harsh approach to life. You can take a milder approach. You might take a more harsh approach to life. Like कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी हिंदुत्व लेके आ रहे हैं. एंड हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं यार, मोदी जी इज़ नॉट डूइंग इनफ, वी नीड योगी जी. सो एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन लाइफ, राइट? सो yeah, I mean, that's how I think it plays out, right? The other thing is, take everything that I say with a grain of salt, because life changes pretty quickly, and I might not have the same opinion as I had today, and my opinion might not even match what I had yesterday, right? So yeah, I have learned a lot in the last 3-4 years of whatever I've done in trading and outside trading. Bunch of life events have happened in the last few years, and I've got an understanding of what works and what doesn't work. And I feel like, I think I've cracked it out, at least to a certain extent, to whatever I'm able to do. Baki yahan se how it works out, how life works out, I'm not sure, right? So whatever I've made today can be lost. So that's one part. The other part is, I will tell you what my current reality is, so that you can understand why what I say might matter to you. So like some of you guys would be like, how are you able to guide me? Like, तूने ऐसा क्या उखाड़ा है जो तू मेरे को गाइड करेगा? So I'm 23. I trade full time pretty much, okay, and I also take care of my family. It's not like I was born in some low class family or something, lower middle class family or something, but I was born in a middle class family. So middle class, higher middle class. Dad makes enough money to send me to a good decent college and school. We have a good normal house, a good normal everything, right? You have a car, but it's not a hyper car, it's a normal car, like, budget car. Everything is normal. You have ups and downs in your life. But to what I've achieved, I would say, at least as of right now, I am sitting pretty decent on the trading part, right? I've developed a pretty decent system. It has given me really good returns over the last few years, and I would say I've made a few crores out of it. And overall, I also started a tech company, just related to trading, coding out strategies and giving it out to them. It's mostly a high-priced company, so we have quite high rates for everything, pretty much, right? So we don't cheap out. Yeah, I mean, that has done really well. And मैं कैसे समझाऊँ कि even after like abhi I have like even after all, let's say all the projects that we have currently, we figure them out, when we complete them, we have about, an addition to them, about $250,000 worth of projects left out that we have not even started, or we might or might not start, right? So yeah, I mean, I would say we're doing pretty well on that front as well, and it has generated decent revenue. But enough of the bragging. A lot of people would troll me for what is behind me. It's like, अरे तुम नील कमल की, I hope it's नील कमल, I'm not sure, तुमने नील कमल की अलमारी रखी हुई पीछे. Yeah bro, my house में मेरा room is the dumpster. I can't do anything, okay? There is nothing good put in my room except my
क्या बोलते हैं, except the mandir, right? There is nothing good in the room. So yeah, so like I have a, you can say I have an imaginary wall, that everything right after this wall is pretty high tech, and then everything before this wall is like pretty ancient. So we bought all of this multiple years ago, and we haven't changed that. So that will change eventually. I don't really think, I personally, uh, I would say I'm in the midst of upgrading my life. It's like I've upgraded a few things in my life drastically, but I've not upgraded a few other things. 1 minute, let me just check if the video is recording or not. Just one second. Yeah, so the video is recording. And I'm gonna explain my condition right now, right before I start the video, because it's quite important to have a context on what I'm trying to say and how things are gonna be. Okay, so even when we start talking about things, I would say, if let's say you get into this world of trading and like full time trading, and what you need to, from starting from 0 to 100, if you want to go from there to 100, right? Like knowing nothing, you are at the age of 18 or maybe at the age of 50. I think I can guide you out, right? So I'm going to give you a guide on that, and I'm going to give you more of an optimistic guide, because I'm not a pessimist. If I was, then I would have not reached probably where I am today. And I would say, to explain where I am today, like leave that aside. Let's say, to explain where I am today, I would say I can buy pretty much any luxury that you need in life, right? So, and like pretty much all the things over a time. So अगर मुझे यहाँ से कुछ साल मिल जाए तो आई कैन प्रीटी मच बाय एनीथिंग आई वांट. तो उस टाइप पे आप हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग में. बट क्या होता है कि इवन बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक प्री कंसीव नोशन दे देता हूँ कि it's not gonna happen in a day, in a month, in a year, or in 2 years, or 3 years, or 4 years, or whatever. It's gonna take time. ठीक है ना, और luck is gonna play a big part in it. ठीक है, तो let's start. ठीक है, first you need to ask yourself why you want it. ठीक है, there are multiple reasons, right? तो पहला एक reason होता है कि I wanna get rich, which is for most people. ठीक है, and it is for me. If I have to ask myself why I want it, it's because let me improvise. So it's because I like this. I like the sound of money. I like it when it's in my pocket, right? So yeah, I mean, I usually tend to keep physical cash around me so that I spend all my money in cash. So what I do is I go to bank, withdraw cash, spend it physically, so that because when money is in your bank account and you spend it, you don't feel it, right? You don't feel it going from your hand. So you don't understand how much you're spending. When you spend it from like your तुम अपने हाथ से स्पेंड करते हो, कैश में स्पेंड करते हो, तो तुम्हारे को एक फील आता है कि तुम कितने पैसे दे रहे हो, कितने पैसे ले रहे हो, वगैरह वगैरह का, राइट? सो उससे क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है मन में कि यार भाई, मैं इतने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, मैं 500 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, 100 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ से दिख रहे हैं वो जाते हो. पेटीएम यूपीआई करते हो 6969 5959 2929 1234, अब जो भी अपना पिन कोड लगाते हो, अब वो करते हो और ओके दबाते हो और पैसे कट जाते हैं, राइट? तो दैट्स वन थिंग. बट हाँ, सो let's come to the main point ki why you want to trade, right? You have to understand there are some people who want to trade just to get 2 to 3% edge over the market every month, right? So what they want is, they're assuming that they're going to get 12 to 13% of their mutual fund, or 7 to 8% of their 6 to 7% conservatively on their bonds. They're assuming that they might get something out of their FDs, and what they want to do is they want to just get another 10 to 20% extra on their entire X sum that they have as a capital, right? For those people, it's relatively easy to be what they are, but the thing is that going to a full-time trading is a little harder than what you think, right? So you need to first understand where you stand, what sort of return are you looking for, and what sort of time investment are you ready to do. So some people would have a job, right? So in the starting, some people have a job, some people have some sort of school or college arrangement. Probably not, people are not trading when they're in school.
I would not recommend that. That's just a waste of time. You won't even have money to do that. But when you're in college or when you're a professional, you'll have some time. So how much time are you able to put in? And are you or are you maybe retired, or are you maybe done with, you have enough money now, you just want to grow at a little pace, or you want to start fresh, or in college, or you want to start fresh, or right out of college you have some money, but for some way you have some money, maybe from parents, or from maybe the last venture that you did, or maybe some way you got some money, right? And you don't want to go for a job, you want to do this full time, right? To all the conditions, let me be very honest with you, full time is not going to come as easy as you think. It's not about how much money you have. You might have 5 lakhs, 10 lakhs, 50 lakhs, 2 crore, 5 crore, 10 crore in your bank account. It doesn't matter really. And I'll explain you why. I have seen my friend lose over 2 crore rupees in a day. Okay, and I've seen my friends make over a few crores in a day as well. And when you see that, you understand that there is potential of both destruction and construction. Should you really say construction? I don't know what word to use, but you can make shit ton of money if you are on the right side of the market, right? And if you're on the wrong side, you can lose all that you have. Okay, so what I'm trying to say is the amount of capital that you're gonna have, it's not gonna matter in the starting. It's gonna matter somewhere in the middle way, right? When you want to switch and become a full-time trader, that's where it's gonna matter. The first part, if you come to the first part on how to start out with trading, my first suggestion would be ki decide how much money you are ready to lose. Okay, so it could be an X amount of money that you are ready to lose, and it doesn't matter at all. ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, सो आई डिड सम सॉर्ट ऑफ ऑड जॉब्स, मतलब छोटे मोटा जो भी काम मेरे को एक लाइक जैसे फ्रीलांस की तरह, या फिर भाई एक्सट्रीमली छोटे काम, मतलब कैसे समझाऊँ, 1000-2000 रुपये इधर उधर मिल जाते थे, तो मेकिंग उधर उधर से कमा रहा था. एंड आई ऑलरेडी हैड 70 to 80K दैट आई हैड मेड ऑफ माई OLX and AliExpress business, small scale business before 2020. So I had already made that money. I had kept that money with me, and then I also made this additional 5-10,000 rupees a month at that point. So my take was, okay, I'm gonna be able to lose this entire 80K. ठीक है, मैं तो ये सोच के आया था कि मैं पूरा का पूरा 80,000 लूज़ करके जाऊँगा, 60,000 जो भी मेरे पास था मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. एंड द रीज़न बिहाइंड द वे आई वॉज एबल टू थिंक अबाउट इट वॉज कि भाई, at the end of the day, if I get a single job that I'll get, I'll at least be able to make 30-40K. Like bare minimum, I'll go to TCS and I'll be able to make 30-40K. Well, that was my thinking when I started, right? Though reality did crumble later down the line. I was not even able to get that TCS job for a while, and then I was able to do it. But that's a different video altogether. But my major thinking was, okay, I'm going to be able to at least make 30 to 40,000 a month, and I'm going to be at least able to make over a lakh rupees later down the line in future, and I'll be able to cope up this 60,000 even if, let's say, I lose it, right? So it's not going to be a financial burden on me, and I'm not going to be able to get any other money through my parents or anything like that as such, because that's not going to be possible, because my parents are not going to give me any money. They have not given me any money till now, right? I've asked them multiple times, but they've never given me the capital. So where it started, like the initial days, right? I had 60,000. I traded it in intraday equity, and I tried to make some money. In the starting, it was very easy because it was 2020. Everything was going up, so I was making money as everything was going up. I would do a swing trade, and it would always work because it was 2020, right? But as later down the line, it started failing, and I understood that, okay, if I want to do something regularly, I have to get into options, because options are leveraged. You have more potential because उनमें मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है. अगर एक रुपये की कोई चीज़ है, उसको आप 100x लेवरेज कर दोगे. अगर आप 1 रुपये भी कमाते हो उस पर, तो आप 100 रुपये कमा रहे हो, राइट? तो ऑप्शन में इनहेरिटली बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है, तो आप उससे कमा सकते हो. One good thing that I had back in the day was I met a lot of conservative friends. They were doing option selling. They had a decent capital. Almost, I think both of them, Raj and Zubair, were having over 25 lakhs worth of capital, right? So that's a conservative capital. Back in the day, we thought that 25 lakhs is all you need to trade. That's what my thinking was. Their thinking was 50 lakhs is all they need to make. And then as soon as their cap increased, their expectations also increased, my expectations also increased. So what I'm trying to say is capital won't matter actually much. ठीक है, अगर आपके पास एक 1.5-2 लाख रुपए का कैपिटल है
टू स्टार्ट ऑफ विथ, इट इज़ इनफ. अगर आपके पास वो 1.5 से 2 लाख रुपए का कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड टू स्टार्ट, बट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग मार्केट एंड एटलीस्ट स्टार्ट वॉचिंग आउट ऑन ट्विटर एंड फिनट्विट कम्युनिटी ऑन व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, अगेन मैं आपको स्ट्रेट ऑफ बोलूँगा, सेलिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, ये सब डजेंट एक्चुअली मैटर इन अ लॉन्गर रन. ठीक है, इट मैटर्स इन अ शॉर्टर रन, बट लॉन्गर रन में इट्स नॉट गोना मैटर. आई नो दिस is a kind of a controversial thing. This is something that I usually don't recommend, but I'm going to be honest with you. Option buying and selling both have an equal opportunity if the person is right. ठीक है, तो आपको सही इंसान बनना है. बाइंग और सेलिंग वो एक अलग थॉट है, राइट. देखो, मेन तरीके से सोचना. ठीक है, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है तो, और मेरी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये है, और मैं 2 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालता हूँ, तो मैं कितने पैसे लूज़ कर सकता हूँ. देखो, मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ. अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं तो आपको लूज़ करने का पोटेंशियल रखना पड़ेगा अपने अंदर. अगर आप बोलोगे कि भाई नहीं, मेरे को तो लूज़ ही नहीं करने हैं पैसे, ठीक है, मेरे को तो यार मतलब मेरे को तो इतना कंजर्वेटिव चलना है लाइफ में कि नहीं, मेरे को तो पैसे लूज़ नहीं करने, मेरे को सिर्फ बनाने. अगर आपने ये सोच के देख लिया, अगर आपने बाकी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लिया कि हाउ टू मेक मनी, देर ऑल गोना से दैट, है ना, कि ऐसे पैसा कमाओ, ऐसा वैसा पैसे कमाओ, वैसे करो, ये करो, वो करो, तो आपके मन में भी आपको ऐसा आ जाएगा ना कि भाई देखो कि मतलब पैसा कमाना ही कमाना है. द रियलिटी इज़ कि नहीं, पैसा कमाना ही कमाना है ऐसा ट्रुथ नहीं है, और रोज़ पैसा कमाना ही कमाना है ऐसा भी ट्रुथ नहीं है, मतलब ये भी सच नहीं है. और हर महीना पॉजिटिव निकलना है ये भी सच नहीं है, और हर साल पॉजिटिव निकलना है ट्रेडिंग में ये भी सच नहीं है. ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ सच नहीं है. ठीक है, आप शायद 2 साल के लिए पैसा लूज़ करो, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत ही नॉर्मल है ये. आपको ये पहले से एक रियलिटी को अपने अंदर सोख करके रखना है जब आप स्टार्ट करते हो. ठीक है, कि शायद मैं 2-3 साल इस चीज़ में पैसा नहीं कमाऊँ, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक यार भाई, अगर आप एक बिजनेस चालू करने जाते हो आज के टाइम पे, ऐसा हो सकता है, कई बार होता है, कई वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ होता है कि नहीं भाई, आप 2-3 साल तक पैसा नहीं कमा सकते हो. ठीक है, दो आई वुड स्टिल नॉट कंपेयर ट्रेडिंग टू अ बिजनेस one-on-one, बट एटलीस्ट द गवर्नमेंट सीज इट दैट वे, राइट. स्पेक्युलेटिव FNO इज नॉट स्पेक्युलेटिव डायरेक्टली, इट्स अ बिजनेस इनकम, right? So if the government sees it that way, I'm going to see it that way. So I'll look at it as a business, not a complete business, but more of a single guy business, whatever you want to call it. But you have to understand that there will be losing months, losing years, losing days, whatever. But eventually your thought process is that you're going to make it. Okay? The next part is you're going to understand the risk, and you're going to focus on your life first. What I mean by that is get your life a little on track. ठीक है, डोंट बी दिस गाय कि भाई अगर मेरे को मैं कमा रहा हूँ 40,000 रुपये और मेरी जो घर की नीड्स है ना वो 35,000 रुपये तक आ रही हैं, या वो 45,000 रुपये तक आ रही हैं. ठीक है, तो मैं अपने घर के नीड्स को क्रश करके मैं अपने अपने फ़ोन में 10,000 रुपये डालूंगा, अपने काइट के ऐप में 10,000 डालूंगा, और दे धनाधन ट्रेड मारूंगा, और उसमें कभी 10,000 अप, कभी 10,000 डाउन होगा, 5,000 अप, 5,000 डाउन होगा, और मेरी हार्ट बीट उस पैसों के साथ अटैच हो जाएगी. अगर आप ये करते हो, आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे प्रेटी मच. आप 3-4 साल 5 साल आप बैठ के लॉस करते रहोगे. अब हर सैलरी आएगी, हर पेचेक आएगा, आप उस पेचेक में पैसा डालोगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालोगे. अब हर साल ब्लो करोगे, हर दिन ब्लो करोगे, हर महीना ब्लो करोगे, ब्लो ही करते रह जाओगे. हर कुछ महीनों में आप ट्रेडिंग छोड़ोगे, फिर वापस आ जाओगे, ट्रेडिंग छोड़ोगे, वापस आ जाओगे. आप बेसिकली परेशान हो जाओगे. ठीक है, आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे. दैट्स जस्ट गोना बी हाउ इट्स गोना बी, है ना. आप कुछ नहीं कर पाओगे, एवरीथिंग इज गोना बी आउट ऑफ योर हैंड्स. ठीक है, फिर कैसे आपको उसको हाथ में कैसे लाना है, दैट इज बाय फाइनेंशियली लुकिंग एट इट, वेदर यू कैन इवन अफोर्ड इट. Can you, like, when you start a business, you don't start a business randomly, right? Because business usually doesn't stand with a 5,000 to 10,000 rupee investment, and it stands with a much harder investment. तो most people don't start it, but अगर आप रियलिस्टिकली सोचो तो एक गोलगप्पे का जो स्टॉल है वो 50,000 में खुल जाता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ वायबल सोर्स, मतलब वो भी एक बिजनेस है ना. बट लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उसमें ना इतनी इज्जत नहीं है वगैरह वगैरह, वो इतना वो अमीरों का खेल नहीं है. ठीक है, तो ट्रेडिंग को लोग अमीरों का खेल मानते हैं, तो अमीरों का जुआ है ये. तो ट्रेडिंग में लोग हर दूसरे 3 से इंसान को 10-20 हज़ार रुपये लगाना है, और वो उसको ऐसा समझता है कि उससे बहुत पैसे बन सकते हैं. द रियलिटी इज़ पैसे बन सकते हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सो हार्ड कि मतलब कोई कमा नहीं रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट द रियलिटी, राइट. तो आपको आना क्या है और आपको करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, अगर आपके पास एक 50,000 रुपये की सैलरी है और आपके घर के नीड्स
अगर आपकी 50,000 की सैलरी, घर की नीड 55,000 है तो आप ट्रेडिंग में नहीं आ सकते. दैट्स जस्ट द रियलिटी. ठीक है, आप नहीं कर सकते फिर ट्रेडिंग. आपका आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे ढंग से. ठीक है, अगर आपके 50,000 की इनकम है और आपके 35-30-35 हज़ार रुपये के ही आपके घर के स्पेंड्स हैं, तो आप शायद 5-5 हज़ार रुपये हर महीना ट्रेडिंग में सेव करके, मतलब आप ट्रेडिंग में सेव करो 5-5 हज़ार रुपये का हर मंथ आप इन मतलब वो करो, अकाउंट में डालो और रखो, और फिर 2 से 3 महीने बाद शायद जाके आप वो 15 या 20 हज़ार रुपये ले करके जो बनता है आप शायद उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एंड आई एम गोना ओनली टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कि आप उससे जेन्युइनली पैसा कमा लोगे. दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना से. आई एम गोना से आपके पास जो भी इनकम है, आपकी ₹1,00,000 की इनकम है, ₹2,00,000 की इनकम है, आपकी 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की इनकम, जो भी इनकम है आपकी ना, आपको एक असेसमेंट डालना पड़ेगा अपने अंदर कि भाई आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आपकी सेविंग्स क्या हो रही हैं. एंड फिर लास्ट में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसे कई बार हम लोग डिस्क्रिशनरी मतलब एटलीस्ट जो लोग ₹1,00,000 प्लस वाले ब्रैकेट में होते हैं, कई बार वो ऐसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं कि जोमेटो पे आज मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने ₹1,500 वहाँ पे खर्च कर दिए जोमेटो के ऑर्डर, मैंने 3-4 लोगों को, दोस्तों को खाना खिला दिया. फिर मैंने किसी दिन मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मतलब मेरा मन कर रहा था तो मैंने कुछ ख़रीद लिया जो अनाप शनाप है, जिसकी मेरी घर में ज़िंदगी में नीड नहीं है. ठीक है, फिर मैं कैब लेता हूँ 200-300 रुपये की हर महीना, हर महीने, हर दिन घर से आने के लिए, जाने के लिए. मेरे को ऊबर लेता हूँ मैं. मेरे को अगर मेट्रो से आने की आदत नहीं है, फिर मुझे मेट्रो से नहीं जाने का मन कर रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, राइट. तो आप फिर उन स्पेंस को कट डाउन करके एक छोटा सा बजट 5-10-20 हज़ार रुपये का पर मंथ डालने के लिए बना सकते हो ट्रेडिंग में. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट्स हाउ यू गोना गेट स्टार्टेड, मैन. देयर इज नो अदर ब्लडी वे टू गेट स्टार्टेड फॉर अ मिडिल क्लास और अ लोअर क्लास पर्सन. रिच के लिए इट्स मच ईजियर बिकॉज यू कैन अफोर्ड अ कैपिटल, बट for a middle class, lower middle class person, no other way, pretty much no other way. I hope it's recording. Yeah, so it is recording, yeah. So yeah, for a middle class person there is pretty much no other way around it. Don't even think about, okay, I'm not gonna go there because that's gonna give you ideas. Okay, so I see a lot of people who are going on debt for trading. भाई प्लीज़ डोंट डू दैट. डोंट पुट योर फैमिली इनटू लॉट्स ऑफ प्रेशर. मैंने देखा है लोगों के घर बिकते हुए ट्रेडिंग में, तो आई नो हाउ हार्ड इट कैन गो. तो डोंट डू दैट प्लीज़. ठीक है, बट लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्टर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बेस हमने पहले चालू किया कि हु कैन ट्रेड एंड हु कैन नॉट ट्रेड. तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं बच रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग. मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी इज़ एन एक्सट्रीम डिस्क्रिशनरी स्पेंड. ठीक है, एक लेदर की 6,000 रुपये का बेल्ट लेना, 10,000 रुपये का बेल्ट लेना इज़ एन एक्सट्रीम डिस्क्रिशनरी स्पेंड. ठीक है, एक आईफोन क्या बोलते हैं 15 Pro Max लेना इज़ एन एक्सट्रीम डिस्क्रिशनरी स्पेंड. ठीक है, अगर आप इन डिस्क्रिशनरी स्पेंड और कई चूतिए तो उसको लोन पे लेते हैं, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. मतलब कई लोगों के पास पैसे नहीं होते तब वो लोन पे लेते हैं. तो पैसे हों और आप लोन पे ले रहे हो देन यू आर स्मार्ट, एंड पैसे नहीं है और आप लोन पे दे रहे हो देन यू आर डम. ठीक है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू. आई एम गोना जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू. इफ इट डजंट मेक यू मनी एंड यू आर लाइक डूइंग इट, इट्स अ बैड मूव ब्रो. तो या वेयर वाज आई. या सो if you're able to save enough money after all your major spendings, and you're able to save also for the worst case scenario, and you have some savings, then you can pull out some discretionary spends, like cut down on some discretionary spends, build a capital somewhere close to 25k to 50k to start with, and then maybe you can switch on to somewhere close to a good cap, a decent cap to start around with would be 4 to 5 lakh rupees. Yeah, it's on a little higher end. Nobody has that kind of money, but you'll have to chip in that kind of money if you'll want to start. Okay, the next part is gonna be choose a free broker, like basically a broker that doesn't charge you any brokerage. So, namely two that I know is, one is Shunya, the another one is Kotak. Both of them will have their own issues, glitches, वगैरह वगैरह वगैरह. But when you're starting on a small cap, brokerage would put you up at a very big loss if you're starting up with something like Zerodha. Now the next point that I'm going to be talking about is trading. Okay, whatever I say from here, don't quote me on this. This is what my opinion right now is.
Maybe in the next few years, my opinion can change. Maybe in the next few days, my opinion can change. Things happen. You change, right? So my opinion is going to be this. Once you have a 25 to 50k capital, look around on what is margin and like how do you manage margin and how do you hedge your bet, and then get into something called as directional selling. I think I have a video on it. I think other people would also have a video on it. My current description is build yourself for directional selling, but the way you want to directionally sell is you want to do whatever you want. ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो. और सबसे पहले ट्विटर पे एक्टिव हो जाओ. ट्विटर पे दूसरे लोगों को फॉलो करने लोगों को देखो कि वो क्या कर रहे हैं. उसके बाद देखो कि भाई मेरे पास 25-50 हज़ार रुपये, मुझे एक लॉट बेचना है हर एक्सपायरी पे या फिर हर जैसे भी आपको बेचना है. ठीक है, जो आपको करना है करो. मेरे को एक लॉट हर दिन बेचना है ट्रेडिंग में और हेज लेके भेजना है मेरे को. और मेरे को जो मर्जी में आ रहा है मेरे को वो बेचना है. ठीक है, मतलब मेरे जो मर्जी में आ रहा है मैं वो बेचूंगा भाई. मैं उसके सिवा और कुछ नहीं करूँगा. ठीक है, मेरे को लगता है कि अभी मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल बेच दूंगा. मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट बेच दूंगा. मैं मेरी मर्जी से करूँगा या फिर मैं कॉइन टॉस कर लूँगा. मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको जो करना है आप करो. बस आप मार्केट का फील लो. आप मार्केट को समझने की कोशिश करो कि हाउ डू द डायनामिक्स वर्क. व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप. Get a feel, get an understanding of, okay, if the market is falling and if it's reversing, where do I have to stop? Where does my psychology hits that bottom कि यार इसके ऊपर का लॉस मैं नहीं ले सकता. ठीक है ना. You need to understand that, you need to figure that out. ठीक है, it's not a very hard task to take random trades, but what's hard is to stop trading, and the second hard part that you're gonna focus on is टू अंडरस्टैंड हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स. ठीक है, तो मेरा मतलब क्या था कि जैसे मान लो अभी मार्केट नीचे जा रही थी, ऐसा लग रहा था, तो तुमने कॉल शॉर्ट कर दिया, तो मार्केट नीचे चली गई तो तुम खुश हो गए एकदम, प्रॉफिट बनेगा. उसके बाद जो तुमने पहले कोई रूल बनाया था, जैसे कि तुम ना फिर रूल्स बनाओ. लाइक तुम मार्केट को ऑब्जर्व करो और अपने हिसाब से रूल बनाओ. ठीक है, तो पहले कोई मान लो एक रैंडम बंदा आता है, वो बोलता है भाई अगर मार्केट सुबह 15 मिनट खुलने के बाद 50 पॉइंट डाउन जाएगी तो मैं कॉल ऑप्शन बेच दूंगा. ठीक है, एक आर्बिट्ररी रूल है. मैं एक आर्बिट्ररी रूल बता रहा हूँ तुमको. ठीक है, और 50 पॉइंट डाउन गई तो मैं बेच दूंगा. अब मार्केट यहाँ से कभी भी अगर 50 पॉइंट ऊपर आई, मतलब किसी भी इंस्टेंस पे अगर मार्केट ने 50 पॉइंट का ऊपर विक मारा तो मैं अपना कॉल ऑप्शन काट दूंगा. मैं एक बहुत ही रूडिमेंट्री रैंडम चीज़ बता रहा हूँ. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही करना है. मैं एक बहुत ही नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने अभी जिसके बारे में सोचा, मैंने कभी खुद अप्लाई नहीं किया. ठीक है, तो ये कोई बंदा सोचता है. ठीक है, तो अभी उसने एक रूल बना दिया उसके लिए रैंडमली. ठीक है, वो पहले दिन आया, उसने एक रूल बना दिया और अब उसने कॉल बेच दिया. अब मुझे देखना है कि 50 पॉइंट मार्केट जब वापस रिट्रैक्ट हुई तो तुमने उस कॉल को काटा कि नहीं. भले वो पॉजिटिव में चल रहा हो या लॉस में चल रहा हो, तुम्हें उस कॉल को काटना है. क्यों? क्योंकि तुमने रूल बनाया था बिफोर स्टार्ट टेकिंग द ट्रेड कि भाई मैं वो कॉल काटूंगा. ठीक है, तो वो जो एक क्या बोलते हैं डिसीजन तुम्हें लेना है वो तुम्हें खुद लेना है. ठीक है ना. तो और हाँ, अगर ये कॉल पुट वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो देर इज़ अ गुड वीडियो ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड व्हाट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर बाय मिस्टर PR Sundar. Go watch that. That's a pretty good video. I have personally watched it. I think there is a series, not a video. So go watch the entire series. I think that would be very beneficial. He's a nice guy. I like him. I respect him. Sometimes he says certain things on Twitter that are not so nice, but other than that, I think he's a pretty nice guy. And he also sells a course on option buying, which I believe is not what he does. So I also disagree with him there. But other than that, he's a pretty nice guy. Pretty nice video. Go watch him. Yeah. So what's the other part that I was talking about? Yeah. So you need to do whatever the hell you want. I don't know. Maybe you flip a coin and it comes at call, and then you sell call, and then you decide, okay, I'm gonna keep flipping coin every 5 minutes, and I'm in this 5 minutes I'm gonna be like, okay, continue trading. One part is gonna be continue trading, the other part is gonna be like head आया तो continue trading, tail आया तो cut the call. ठीक है, और ऐसा मैं करते रहूँगा हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, और करते रहो मैच. ऑल यू वांट टू नीड टू लर्न इज टू स्टिक टू योर रूल्स. जो रूल बनाना है ना वो दिन के स्टार्ट में 9:15 के पहले बनाओ, और रूल में कोई अमेंडमेंट करना है तो 3:30 के बाद में करो. ट्रेडिंग के आवर्स के बीच में कोई रूल में अमेंडमेंट नहीं चलेगा.
दिस इज द ओनली ब्लडी थिंग दैट यू नीड टू लर्न. ये सीख लिया तो ब्रह्मास्त्र आ जाएगा. ठीक है तुम्हारे पास. इट्स ट्रस्ट मी, इट इज व्हाट इट इज. लाइक आस्क एनी वेटरन on how important this shit is. It's fucking really important. Because sometimes because we are mostly sane before 9:15 and after 3:30. We are not sane in between, right? We have lost our minds in between that because market can show you that a lot of money is available. You'll feel like a lot of money is free money, because once you learn trading, you'll feel a lot of money is free money, but it's not, right? It can go against you. But anyways, that's a topic for some day later. Let's talk about the other part. So the other part is, then they're gonna have a second rule. So a second step that you need to take care of, and that step is gonna be the number of trades. The number of times that you're gonna enter or exit is gonna be in your control. You can keep the amount to less than 5 in the start. Maybe you can experiment and increase it later down the line depending on what you do. बट स्टार्टिंग में ना दिन के 5 ट्रेड पे स्टिक करना. मतलब एक ट्रेड को मैं बोलूँगा एंट्री एंड एग्जिट, और दिन के 5 ट्रेड से ऊपर मत जाना. मैं रिकमेंड करता हूँ दिन के 2 ट्रेड से 3 ट्रेड से 4 ट्रेड. 4 ट्रेड फॉर हायर कैपिटल, मतलब 30-40 लाख के एटलीस्ट ऊपर. और लोअर ट्रेड्स को मैं बोलूँगा, मतलब लोअर को मैं 2 ट्रेड को बोलूँगा मैं 5 लाख के अंडर. 5 लाख के अंडर तो लोअर ही ट्रेड करो भाई. It's not important to trade too much. It's more important to the way you think about like the position that you make and all that. But yeah, certain strategies might need you to enter a lot of times. So that you need to figure out on your own on what is the sweet spot for you. But experiment. All I would say is experiment. करो जो करना है. एक ही लॉट ले रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा वो कैप कर लो, हेज लगा लो, कैप कर लो. हेज कैसे करते हैं देख लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं. हेज करो, कैप करो, नहीं तुमको ट्विटर पे डीएम कर दे, मैं समझा दूंगा. हेज करो, कैप करो, आगे बढ़ो. ठीक है. फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको ये समझना है कि हाँ, तो इसके बाद आपको ये समझना है, एक एक्टिवली एक डिसीजन लेना है कि भाई अगर मेरे पास, लेट्स लुक एट इट दिस वे, ओके. आपको ये डिसीजन लेना है आपकी लाइफ में कि यार अगर मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो मैंने मान लो 2 लाख रुपए के करीब इकट्ठा किया, तो मुझे 2 लाख के करीब एक मतलब एक 2 लाख मैं लूज़ कर दूंगा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी. कई लोगों के लिए ऐसा होगा, कई लोगों के लिए नहीं होगा. कई लोगों को के लिए 2 लाख कुछ मैटर नहीं करता होगा, शायद वो उनकी एक दिन की इनकम हो. मतलब होता है भाई, जो लोग बहुत बड़े मतलब किसी का अगर दिल्ली में कहीं पे बड़ी जगह पे शॉप वॉप है, 4-5-10 लाख रुपए तो उसके दिन के सेल्स होती है. कई मतलब काफ़ी लोगों के लिए है ये रियलिटी, राइट. हमारे लिए शायद ना हो. तो कई लोगों के लिए 2 लाख मैटर नहीं करता हो, कई लोगों के लिए 2 लाख मैटर करता हो, राइट. तो अगर आपके लिए बहुत मैटर करता है आपका कैप जो भी आपने सबमिट किया है, ठीक है, तो आपको उस पर भी देखना पड़ेगा कि कितना लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ. आप शायद एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो अभी, ठीक है, बट कभी ना कभी तो आप लॉट्स बढ़ाओगे ना. तो जब भी आप लॉट्स बढ़ाओगे ना, आप मेंटली देखना, सोचना पहले से कि यार मैं कितना लूज़ करने के लिए रेडी हूँ. एक दिन में, एक महीने में, एक साल में मैं कितना लूज़ करने के लिए रेडी हूँ. और शायद क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास पैसे होते हैं बट आप लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होते हो. तो उस टाइम पर अगर ऐसा होगा कि आपके पास पैसे भी नहीं और आप लूज़ करने के लिए भी उतना भी रेडी नहीं हो जितना आप थोड़े पास है, तो भाई कभी नहीं हो भाई ट्रेडिंग, फिर छोड़ दे. बट I would say a good remark to this is bare minimum you need to be ready to lose at least 50k to a lakh rupees bare minimum in a year, ठीक है. And in a day probably about 4 to 5k. No, that's gonna be maybe too much. For a lot, single lot, maybe probably about 1,000 to 2,000 rupees. I'm not sure exactly. It would matter from your index to index and all that stuff, but whatever you would lose from a lot rupees going to, one lot of trade going to zero is what I believe you should be also ready to lose. So put that as a, like, give it an understanding on what you're ready to lose. Like, it could be for some people 500 rupees, 600 rupees, 1,000 rupees. Figure it out, and then whatever that amount is, half it, and that should be your max loss in a day. Just strictly half it. Whatever your mind says,
half that thing, because our mind is very tricky. When you see the mark going, let's say you set it to 3,000 rupees, and when you see the mark going to 3,000 in a day, your mind will like, shit, I can't lose this much money. This was the max amount of money that I would lose, and this has now come डाउन टू दैट पार्ट. अब मैं इतना नहीं लूज़ कर सकता, अब मैं एक और ट्रेड लूँगा और मैं इसको पूरा रिकवर करूँगा. एंड फिर जब वो होता है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, राइट. तो जो भी वो अमाउंट रखोगे उसका आधा कर दो, एंड उससे उसी को अपना मैक्स लॉस समझ के रखो एक दिन के लिए. अब वो एक ट्रेड में आए, 2 ट्रेड में आए, 3 ट्रेड में आए, 4 ट्रेड में आए, वो तुम्हारे पर है. पर कई लोग उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं जैसे मैंने किया. तो जैसे मान लो मेरा 3,000 का, फॉर सिंप्लिसिटी से लेट्स से मेरा 4,000 का मैक्सिमम लॉस लेने की कैपेसिटी, तो मैं क्या करूँगा, मैं हज़ार रुपये पर ट्रेड को डिवाइड कर दूंगा. मैं एक ट्रेड में 1,000 रुपये से ऊपर लॉस नहीं लूँगा. बट अगेन ये थोड़ा मैटर करेगा लॉट साइज पे. मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि एक लॉट पे कितना लॉस होता है, क्योंकि मैंने एक लॉट पे ट्रेड नहीं किया बहुत टाइम से. पर आई नो सटल फ्लेक्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आई एम जस्ट गोना चेक इफ इट्स वर्किंग ऑन. Okay, so I'm recording for 36 minutes and it's recording. Fuck, that's long. I probably need to make this video in parts because अब तो साला मेरा गला भी दर्द होने लगा. So what was I talking about? Yeah, so उसका डिवाइड कर लेना और फिर ट्रेड्स लेना और फिर रैंडमली ट्रेड्स लेके फिगर आउट करना कि तुम्हारा एसेंस क्या है, तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है मार्केट का. और शायद तुम्हें 6 महीने लग जाएं फिगर आउट करने में कि तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो, शायद तुम्हें 8 महीने लग जाएं, शायद तुम्हें 1 साल लग जाए. बट ट्रेडिंग इज़ मोर लाइक ड्राइविंग. इनिशियल स्टेप्स मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है. मैं तुम्हें बता दूंगा गियर किधर है, पेडल किधर है, एक्सीलेटर पेडल किधर है, अपना ब्रेक किधर है, क्लच किधर है. अब फिर गाड़ी तुम्हें चलानी है ना, तुम्हें सेंस लगाना है कि कितना रिस्क लेना है, मतलब कौन सा गाड़ी किधर से आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और फिर तुम्हारे को एक्सीलेटर पे पैर दबाना है, तुम्हारे को ब्रेक पे पैर दबाना है. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब रुकना है, कब ज़्यादा रिस्क लेना है, कब कैसे क्या मैनेज करना है, ठीक है. तो ये मेजर बात आ जाती है इनिशियल स्टेप. इनिशियल स्टेप यही है, इधर से ही ट्रेडिंग फिगर आउट होगी. इस चीज़ में लॉट्स तब बढ़ाना जब तुम्हारा कैपिटल एक्सटेंड हो. जब प्रॉफिट कर रहे हो तो लॉट्स बढ़ा देना. अगर चादर, जो तुम्हारी चादर है, वो बोलती है ना नानी लोग की, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना है. अगर तुम्हारी चादर अलाउड करती है तो कैपिटल डालो, वरना मत डालो. और कॉन्फिडेंस आने पे डालो, किसी से पूछ के डालने की तुम्हें ज़रूरत नहीं. जब अंदर से मन बोले कि भाई थोड़ा सा पैसा मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा दो कैपिटल. थोड़ा सा बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना. देखो अगर कैपिटल 2 लाख था, द मैक्स आई वुड से टू इंक्रीज टू द नेक्स्ट, एंड लेट्स से यू डू मंथली टू मंथली. देखो हर इंसान का अपना फिगर आउट करने का भी होता है. जैसे कई लोगों की सैलरी मंथ टू मंथ आती है, ठीक है. कई लोग अपने जो क्या बोलते हैं, शॉप में जो भी पैसा देखते हैं वो मंथली टू मंथली के बिल्स बनाते हैं वगैरह. कई लोग क्वार्टर टू क्वार्टर करते हैं. तो जो भी जिसका भी जैसा, जैसे प्राइवेट कंपनीज क्वार्टर टू करते करती है, पब्लिक कंपनीज फाइलिंग्स करती है क्वार्टर टू क्वार्टर, राइट. तो जो भी जैसा भी रहे आपका, आप अपने हिसाब से एक ट्रैक बना लो. 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, वॉट एवर, कि इतने टाइम में मैं कैपिटल को असेसमेंट करूँगा, मैं बढ़ाऊँगा या कम करूँगा. मेरे हिसाब से यूजुअली बढ़ाना ही चाहिए, कम कोई करता नहीं है ऐसा. बट ठीक है, 1 महीने के बाद, वैसे अब मैं कम करने लगूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग टू टॉक अबाउट. सम डे आई विल लेटर टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. पर क्या होता है कि आपने जैसे लाख रुपए, मान लो लाख रुपए आपका कैपिटल था, मान लो आप अच्छी जॉब में हो, आपके 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम है, या फिर आपके लाख रुपए की मंथली इनकम. आपने एक एस्टिमेट हो जाएगी, फर्स्ट मंथ जो है वो अच्छा गया, आपने उसमें 5,000 रुपये कमा लिए. मैं बस एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ. आपने 2 या 3 लॉट के साथ ट्रेड किया था और आपने 5,000 कमा लिए. पहले आपने एक लॉट के साथ चालू किया था, आप काफ़ी मंथ से करते आ रहे हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था. इस मंथ आपका ब्रेकआउट मंथ था, आपने 1 लाख रुपये 5 से 6, 10,000 रुपये कमा लिए, है ना. और आपने इस बार 2 या 3 लॉट यूज़ किए थे. आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाऊंगा, है ना. और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो फिर कैपिटल बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. फिर ऑप्शन बायर्स के लिए देयर इज़ नो इशूज़. आप आराम से ट्रेड करो. बाइंग करें, सेलिंग कर रहे हैं, आपकी मर्जी है. बट स्टार्टिंग में मैं सेलिंग करने के लिए बोलूँगा. बाइंग आप तब करना जब आपका प्रॉफिट बिल्डअप हो जाएगा, उस प्रॉफिट के साथ बाइंग कर लेना, कोई बात नहीं, चलता है भाई. बाइंग का भी मैं बोल रहा हूँ कि कर सकते हो, बट लॉस में बाइंग मत करना, लॉस में सेलिंग करना, प्रॉफिट में बाइंग कर लेना, ठीक है. तो हाँ, बाइंग के प्रॉफिट को, मतलब सेलिंग के प्रॉफिट को बाइंग में लॉस करोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अब आ जाते हैं अपन कि वहाँ पे अपने लेट्स से 10,000 का लॉस हो गया, या फिर लेट्स से 10,000 का प्रॉफिट हो गया. लॉस पे मैं बोलूँगा कैपिटल मत बढ़ाना, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही बढ़ाने की जरूरत पड़ी. वैसे नहीं पड़ेगी, बट मत बढ़ाना, ठीक है.
प्रॉफिट में आप हल्का फुल्का 5-10 हज़ार रुपये ले, आपको बढ़ाने का मन कर रहा है या आपको 20,000 रुपये का बढ़ाने का मन कर रहा है, आपकी 1-1.5 लाख रुपये की सैलरी आप बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दो, ठीक है। और इसी कैप को फिर ग्रो करने की कोशिश करो, ठीक है, फिगर आउट करने की कोशिश करो। जो बाद के स्टेप्स हैं मैं आपको लेने के लिए समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये ग्रो करने की कोशिश करो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोना बी कि आपको फिगर आउट करना है कि ये जो आपका मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वगैरह है जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वो आप कैसे मतलब ऑन अ लार्जर कैप इम्प्लीमेंट करोगे, अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर हाँ, ये आपका एक इनिशियल इंक्रीज ऑफ कैपिटल होगा कि आपको हर महीना कुछ कुछ कैपिटल ऐड करना है और कुछ कुछ ग्रो करना है, एंड देन यू हैव टू ट्रेड। एंड यहाँ पे बहुत ही रूडिमेंट्री ट्रेडिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होगी ना बहुत रूडिमेंट्री होगी, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। द सेकंड पार्ट इज गोना बी ऑफ दिस इज टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट ऑटोमेशन यू कैन डू टू दिस, ठीक है। अ गुड सेंस ऑफ ऑटोमेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट। आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, और देखो यार मैं शायद ना कुछ पॉइंट्स बीच में मिस कर जाऊँ, अगर मैं मिस कर जाऊँगा तो मैं एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा उस पॉइंट के बारे में। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने नीचे, आई एड अप, आई मेक अ सीरीज आउट ऑफ इट एंड जस्ट एड अप दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स। बट या if you have come so far watching me, I mean thank you. But yeah, what was I talking about? I was talking about, yeah, so the next part is going to be whatever, let's say 6 months down the line you've got an understanding of what you're doing, and now you feel like, yeah, okay, now I can take it to the next level. So the next level is going to be automation. Get an understanding of whether whatever rules that you have made, okay, try to do it rule based from day one, but if you can't do it rule based, that's also fine. पर अगर कर पा रहे हो तो बेटर है। अगर तो रूल बेस कर पा रहे हो तो फिर ऑटोमेशन की तरफ जाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप ऑटोमेट करने की कोशिश करोगे, और वो ऑटोमेशन कहाँ से आता है वो डजेंट मैटर, ऑटोमेशन के ऊपर अपन एक स्ट्रिक्टली एक वीडियो बना के बात कर सकते हैं। कई टाइप के होते हैं, अगर आप स्ट्रैडल बेच रहे हो, स्ट्रैंगल बेच रहे हो, तो आपको बेसिक ऑटोमेशन वाले वो काम कर जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको पाइथन और ये सब को एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा कि आप अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कैसे ऑटोमेट कर रहे हो, है ना। तो उसके बारे में भी ना यार मैं आपको बोलूँगा कि पर्टिकुलरली किसी एक एक्सपर्ट से जो आप जिसको जानते हो, आपको उससे पर्सनली एक बात क्रैक करनी पड़ेगी ट्विटर या कुछ पे, क्योंकि इट्स अगेन अ वेरी बिग स्पेस। आप इसको कैसे फिगर आउट करोगे, देखो मैं आपको यहाँ पे बोल के बैठ के बता सकता हूँ कि आप ऑटोमेशन कर लो, बट आप इसको कैसे फिगर आउट करोगे ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वीडियो में बताना ही थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें ना पर पर्सन वो अपनी ट्रेडिंग में क्या कर रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आई वुड से अगर आप अपना पर्टिकुलर केस अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो और आपको लगता है कि यार अब आपको ऑटोमेट करना है और आपको एक आइडिया नहीं है और आपको लगता है कि आपको मुझसे पूछना है उसके बारे में, तो आप कमेंट कर देना मुझे कि इस पर्टिकुलर टाइप की मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे इसमें चाहिए कि मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ऑटोमेशन का साथ लेना है, मैं मुझे बताओ भाई कि इसमें क्या करूँ, तो मैं शायद उसकी एक अलग से क्लिप आउट करके उसको वीडियो बना दूँ ठीक है, एक शॉर्ट बना दूँ, ठीक है। सो ऑटोमेशन इज गोना बी नेक्स्ट पार्ट। दिस इज नॉट नेसेसिटी but it's a requirement if you want to do what you're doing on a decent cap, or you want to someday exclude your feelings out of trading वगैरह वगैरह। So that part is gonna come later, ठीक है। Okay, so the next part is when you're finally done with strategies, okay, like when you're finally like अच्छा मैंने सब कुछ figure out कर लिया in terms of strategies and I'm being constantly profitable for a while now that next part is scaling up your capital, okay। Now there are going to be two conditions again. One, you have your own money and the money is good. Two, you don't have any money, right? So you're poor. So one, it's very easy. You take your money and you put it. Every month you increase your capital little by little and you do it. Two, you need to ask your mother, father, your family for capital. This is mostly a controversial take. In general, a lot of people would advise against it, but it's better than taking a loan. Don't take a loan. Usually ask your parents for some capital. I'm not gonna say don't ask them for 10-20 lakhs if they can't afford it. Don't tell them to sell their house or something. Try to tell them to put up some capital, like this could be whatever they can afford, like a little bit of whatever they can afford, right? And if it works out, good. If you have a rich cousin that can help you, because my rich cousin helped me in the starting, right? If you have a rich cousin, light gayi, lol. If you have a rich cousin, ask him if he can help
you out with some capital and tell him that there will be risk associated to this capital. This capital can go away. Like you need to make him realize. You can't tell him that नहीं मैं तो इस पे पैसे कमा के ही दूंगा, because that's not how trading works, right? You might lose that money. So you have to make him understand, hey, look, this is what I'm doing. This is what I've done for the last 6 months, 8 months. This is what I've figured out so far. Would you want to invest into this venture? Maybe start with ₹1,00,000 or whatever you can afford. Maybe you can afford 10 lakh rupees in future. Then tell him to just start with ₹1,00,000. Give him some confidence on what he can do. That's what I did to my brother. My brother invested about 80,000 rupees in the starting in me, and that 80,000 later turned into pretty decent sum. But the thing is, even if we would have lost that 80,000, he would have not cared. He was living somewhere in another country and he was chilling. That 80,000 was, I think it was less than what he made in a day back in the day also and today also. So you're trying to understand, he could afford that 80,000, okay, of loss. He had no problem with it. He was expecting a bigger vision, right? I have given him the vision. That vision worked out. Your vision might not work out. Let me be very frank with you. ठीक है, so you need to be frank with that guy also, or that girl also, कि भाई मम्मी या पापा या भाई या भैया ये विजन शायद वर्क ना करे, तो इसमें लॉस हो सकता है, तो उतना ही पैसा देना भैया जितना औकात अनुसार है ना, उतना ही पैसा आप मेरे को दो भैया या मम्मी या पापा जितना मैं लॉस कर सकता हूँ, है ना. और कोई अगर आके आपको बोले कि भाई सेबी या ये या वो या इलीगल है इलीगल है, भैया फैमिली मेम्बर्स किसी को भी किसी भी काम के लिए लोन दे सकते हैं. इट्स नॉट सम बिग डील. ठीक है, चूतिए हैं लोग, भौंकते रहेंगे, भौंक नहीं है उनको, क्या क्या बोलूँ. बट एनीवेज, you can make a deal with your family. Don't make a deal with an outsider. Dealing with an outsider it's chaos. ठीक है, it's fucking chaos. Don't do that. ठीक है, तो yeah, so I want to make it very clear, है ना. And ask your family if they believe in you, है ना. And don't try to pressurize them. It's not usually fun. If you're not able to do this, try to get a better job. I know this might sound like a joke to you, but that's your only way out of this. There is no other way. You can cry about all of that. You can ask people on Twitter, please give me money, please give me money. They're not going to do it. If they have the money, they can trade themselves, right? They can take that risk themselves. Why would they give it to some person who has not even proved it? So it's not going to happen. Do it yourself. Either get a high paying job, or ask your parents, or ask your cousins, or your brother or sister or whatever. If they can afford it, if they're also garib, then leave it. It's not necessary कि हर इंसान को ट्रेडिंग ही करनी है. Focus on your main career, work on it. Maybe you can make that big and then come into this and make this big as well. It can happen, but again, it's like it might or might not, right? So understand that risk. ठीक है. The next part is going to be about, okay, let's say if you've figured out the capital, let's say you have 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, whatever. The next part is scaling out. Scaling out is one of the most difficult things. People believe that it's easy. It's one of the most difficult things out there that you need to do. One second, let me just check if it's recording. Okay, so it's recording. It's still recording, yeah. So scaling out is going to be the most difficult thing, right? Because people think it's just like increasing capital or decreasing capital or वगैरह वगैरह. The problem with scaling out is the world is going to say that scaling is hard. The scaling part is actually not that hard. What is hard is that emotions that come with it. But the reason why the emotions get heightened up is because most of the people scale in the most worst manner once they have the access to money. So it can come from their family, their friends, or whatever. Right, they were trading in the starting. They were trading with 2 lakhs, 3 lakh rupees. Now they have made 50,000 rupees or 1 lakh rupees on that money. That they feel that this money is so good, right? Because 50,000 lakh rupees is so good and the return is so good. They forget the fact that they have been lucky, because luck has a pretty good role in trading. And they feel that they're the god now, and like अगर वो 50,000 1 लाख रुपए कमा सकते थे अपने 2 लाख रुपए पे, so the return is really good. It's 50% or 100%, whatever, on a small cap in, like, let's say 6 months or 8 months or whatever. And now they feel like, oh fuck, I can do it. Some people might even make it in a day if they're buying options, but I hope you're not doing that. I hope you're not
like risking out too much of your money, right? I said that you need to risk out a very small certain percentage of your money every day, and I hope you guys don't risk too much. Okay, but that's not the point of the video. The point of the video is, yeah, so scaling up. So the way scaling up is going to work is every month you're going to only increase your capital with a decided percentage. You're not going to go beyond 20%, because beyond 20%, if a drawdown hits you, you're going to be mentally affected by it and you're going to make bad decisions. So if you're trading with, let's say, you have a 10 to, let's say you have a 10 lakh rupee capital that you've just got access to by some friend, family, mummy, papa, I don't know how you got it. You got access to a 10 lakh rupee. You already were trading at 2 lakhs. You made it 3 lakhs. Now you're not going to make this 3 lakh rupees directly 12 lakh rupees, right? 13 lakh rupees, 3%. Not going to do that. The way you're going to handle this is you're going to take that 10 lakh rupees. You're going to only put 2 lakh rupees this month. So 20% of whatever that 10 lakh rupee access that you have, you're going to only add that much. So now your new capital for this month is going to be 5 lakhs. This is going to be slightly hard to trade. I'm not going to lie. 5 lakhs is going to be hard to trade. Next month, you're going to only add about 2 lakhs again. The next month, you're going to only add about 2 lakhs a day. That's how you're going to go. You're not going to go haywire and just... And you can even add, like, let's say if the month doesn't go well, don't add any capital. Try to make that... Give it time. दो यार 1 साल 2 साल 3 साल में जल्दी पैसा क्यों कमाना है? क्या करोगे जल्दी पैसा कमा के? कौन सा तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाने वाली है? अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 50,000 लाख रुपए आ जाएंगे और तुम्हारी उस 50,000 लाख रुपए से ज़िंदगी बदल रही है, तो फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी यही चूती है और तुम्हें कोई और वे फाइंड आउट करना चाहिए. ट्रेडिंग इज़ प्रॉब्ली नॉट फॉर यू देन, राइट? ट्रेडिंग इज़ ओनली फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड रिस्क, who can afford making money slowly but lots of it, है ना? Compounding is a very big factor. It takes time, bro. It's not gonna happen one day. So don't increase your cap too much and don't increase it too fast. In fact, when it goes beyond your expectations, some months are going to be crazy. Withdraw some cap those months. I have been withdrawing capital for the last 5 months because I feel like it's too much. And it's feel like I've been withdrawing 50% because it's too much sometimes. And I'm still constantly actually increasing my profits. So it has been a few crazy months for me. But yeah, like भाई कितनी लाइट जा रही है और आ रही है. आई एम श्योर कुछ तो गलत हो रहा है, बट आई थिंक बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है. नहीं, नथिंग हैपनिंग. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, बट ठीक है. इन्वर्टर काम कर रहा है अपना. तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ तो मैं आ रहा था नेक्स्ट बात पे. तो नेक्स्ट बात था ये स्केलिंग वाला. लेट्स से यू फिगर दिस आउट एज वेल एंड इट्स गोना बी लाइक एवरीबडी इज गोना से दिस scaling part is not possible and all of that. You cannot scale to a few crores. Your strategy might be working at a small capital. It's not going to work at a few crores. Tell them to fuck off. Tell them that you're going to increase your cap slowly and it's going to work out. You need to have some sort of optimism there. You can't just be like नहीं हाँ आप बोल रहे हो, आप तो वेडिनरी ट्रेडर हो तो आप तो सही बोल रहे होगे. नहीं, ज़रूरी नहीं है. थोड़ा कंजर्वेटिवली आप थोड़ा इंक्रीज़ करो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा भाई. थोड़ा भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा भरोसा तो चाहिए. ट्रेडिंग बिना भरोसे के नहीं होगी, ठीक है? द नेक्स्ट पार्ट इज गोना बी सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द फुल टाइम ट्रेडिंग पार्ट, बिकॉज वंस दिस इज कंप्लीटेड नाउ यू आर रेडी फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग. बट हाउ, when you get ready? So we're gonna talk about that. Just give me a second and let me just check if it's recording still or not. Fuck, it's still recording. So yeah, I hope it keeps recording. I think the battery is going to be down in a while, so I'm going to stop it. Like, I'm just going to complete this video and then stop. Right, so the most important part, the full time trading part. Okay, let's get to it. You need some saved up capital for your trading. Whatever you feel like this capital is enough for you, you can be a full time trader at that capital. It can be 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, whatever. I am telling you personally, you're never going to be satisfied. That number is always going to increase. Trust me, once the number increases to a 1-day fluctuation of your monthly salary, you can safely quit trading. Because at that point, it's not going to matter anymore. If your 1-day fluctuation is beyond what your monthly salary is, then whether your monthly salary exists or not, your drawdowns are not going to actually affect you. Because यार अगर मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मेरे दिन का ही वो जो PNL है वो 1 लाख नीचे 1 लाख ऊपर जा रहा है, तो यार 1 लाख रुपए आए ना आए, मतलब
फिर वो अगर वो मान लो महीने में 10 लाख रुपए का मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है, तो वो 1 लाख रुपए आए ना आए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा। बल्कि मेरा मेंटल स्ट्रेस जो है वो जॉब में, अगर मेरी जॉब स्ट्रेसफुल है तो जॉब में शायद वो स्ट्रेस एक्चुअली बढ़ जाएगा और मैं शायद फकअप करूँगा, शायद मुझे इनफ टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे देने के लिए। तो देखो देखो ये जो जॉब कब छोड़नी है ना, ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। तो जॉब कब छोड़नी है एक बहुत ही पर्सनलाइज आपके ऊपर का है, आपको कब क्या करना है वो आपके ऊपर थोड़ा रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज गोना बी ओके, the next part, the job part, right? You need to understand this. So then there is going to be something called as var and variance, okay, that you need to take care of. The var is basically value at risk. So at any given point, how much of the value you can lose if, let's say, there is a क्या बोलते हैं, flash crash or something like that, or a circuit in the market, ठीक है। यूजली ऑप्शंस के साथ ये बड़ा वो रहता है कि यार 1 रुपये का ऑप्शन भी 1000 चला जाएगा अगर कोई सर्किट लग गया है, फ्लैश क्रैश हो गया तो। दीज फ्लैश क्रैशेज एंड सर्किट्स आर वेरी रेयर बट दे आर पॉसिबल। तो वही है कि इनके लिए ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा आपको। देखो अगर आप एक साल में 40% कमा रहे हो, लेट्स से आपने बैक टेस्ट वगैरह करा, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, ठीक है, लेट्स से आपने बैक टेस्ट किया या लेट्स से आप एक अनुमान लगा रहे हो कि यार मैं एक साल में 50% कमाऊँगा, और जब अपना वैर निकाल के देखते हो तो फिर उसमें दिखता है कि यार 50% वैर है आपका, तो मतलब अगर एक फ्लैश क्रैश आया तो पूरे साल की अर्निंग चली जाएगी, ठीक है। तो अपने आप से पूछो वेदर दिस इज़ वेयर आई एम ओके विद इट। अगर आप उसके साथ ओके हो तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो बढ़िया है भाई, फिर तो करो मस्त, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो, ठीक है। बट अगर आप उसके साथ ओके नहीं हो तो फिर आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको शायद हेज पास लाना पड़े उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए शायद आपको क्वांटिटी बढ़ानी है कम पड़े, उसके लिए आपको शायद कैपिटल मैनेज करना पड़े, कैपिटल बढ़ाना है कम पड़े। तो वो जो जजमेंट है वो आपको उस टाइम पे लेना पड़ेगा। उस टाइम तक आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ना मतलब कंपनीड हो चुके होगे और आप इनको ऑप्टिमाइज़ करने लग गए होगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि रेशियोज को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। मैं आपको पहले से एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके तो वेल एंड गुड, आप मेरे को एक बार डीएम डाल देना, आई हेल्प यू आउट विद दिस। बट उसको ऑप्टिमाइज़ करने का आपको मतलब पता होगा कि उस पर ऑप्टिमाइज़ करना कैसे करना ना, ये आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होगा। बट इस चीज़ को पर्टिकुलर वैर वाली चीज़ को आप ध्यान से रखना। आपको एक साल में एक दिन में आप कितना लूज़ कर सकते हो एट मैक्स, वो आपके एक साल में आप कितना अर्न कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूजुअली वो होगा भी नहीं उससे ज़्यादा, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज़ गोना बी कि आपका वेरिएंस क्या है, आपका दिन में जो M2M फ्लक्चुएशन होता है वो कितना होता है। देखो अगर एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो 100 रुपये पे 1 या 2 रुपये का वेरिएंस दिखाती है, मतलब 1 रुपये 2 रुपये नेगेटिव या 1 रुपये 2 रुपये पॉजिटिव, अगर ये उसका एवरेज वेरिएंस है, ठीक है, तो आपको जनरली इमोशनल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर उसका वेरिएंस जो है वो एक दिन का 1-2% एक दिन का नहीं है, वो जो वेरिएंस है वो है मतलब 1-2% का नॉर्मल है, बट जब आप हेज वेज लेके सब कुछ करते हो तो 10% से 20% एक डे में इंट्राडे में हिलता है। ये यूजुअली हायर कैपिटल भी ये सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि इंसान का जो इमोशन है वो ऐसे धक 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 दिल करने लगता है। लोअर कैप्स पे इंसान ये रिस्क ले पाता है, ठीक है, बट हायर कैप्स पे ना इंसान नहीं मानता, इंसान का ईमान नहीं मानता, ठीक है। 10% हिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्मार्टली डिसीजन ले करके आपको अपना डिसीजन बदलना पड़ता है और आपको अपना करना पड़ता है जो भी आपको मतलब असेसमेंट करना है। और फिर आपको सही बताऊँ तो मेरा जो नेटवर्थ वाइज मेरा जो P&L फ्लक्चुएशन है एक इंट्राडे का वो है भाई 3 से 4% के ऊपर ही है। तो उधर तक मेरे ख्याल से कई लोग वेरिएंस ले पाते हैं, पर फिर मेरा कैप इतना हाई है और मेरा वो इतना टेक्निकली इतना हाई है कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको अपने कैप के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने क्योंकि पूरा पैसा ट्रेडिंग में ही कमाया तो मुझे पूरा तो नहीं बट 50% ऑफ इट ट्रेडिंग में कमाया, तो मुझे फिर उसके साथ मैं थोड़ा सा कंपनीड हो गया हूँ, है ना। पर और मेरे पास प्लस अपकमिंग मनी भी है, वो जो मेरा ये क्या बोलते हैं अपना कोडिंग बिजनेस है उससे, तो मुझे थोड़ा उससे एक ईजीनेस आ गई है। बट मैं अभी ट्रेडिंग इनकम के साथ भी सस्टेन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है ना। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि उधर से क्योंकि पैसा आ सकता है इन फ्यूचर, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले पा रहा हूँ, बट आप शायद ना ले पाओ, तो वो अपना थोड़ा मैनेज करना। दी अदर पार्ट इज कोई सॉर्ट ऑफ एक फिक्स्ड इनकम आपको बनाने की ज़रूरत है। एक सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम मैं बताता हूँ क्यों।
ये फिक्स्ड इनकम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब इस फिक्स्ड इनकम से एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट मैं एक बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो एक इंसान एक लो कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे जो मैक्सिमम वो कमाता है वो एक महीने का वो कमाता है 2 लाख रुपए, और जो मैक्सिमम मतलब बेसिकली सॉरी लेट्स से जो उसका मंथली टारगेट है एक महीने का वो है अराउंड 2 लाख रुपए, ठीक है। वो उसके पास 50 लाख रुपए का कैपिटल है, वो 4% एक महीने में टारगेट करता है, वो 2 लाख रुपए टारगेट करता है। तब मैं बोलता हूँ यार एक 25,000 से लेके 30-40 हज़ार रुपये तक अगर उसकी मंथली इनकम कहीं से फिक्स्ड आ रही है तो वो आ सकती है बॉन्ड से, वो आ सकती है वो आ सकती है आपके क्या बोलते हैं कोई एफडी से, या जो भी वे ऑफ सेगमेंट से, या कोई रेंट से या कुछ से। तो मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार रुपये इनकम पर मंथ उसके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर थिंग्स गो साउथ तो वो 25 से 30 हज़ार रुपये वो एटलीस्ट अपना घर आराम से चला लेगा। देखो अगर आपकी कार पेड ऑफ है, अगर आपका घर पेड ऑफ है, आप इंडिया के बेसिकली किसी भी कोने में रख रहे हो, अगर आपने बेसिक चीज़ें जो अपने घर की है वो बना ली है, जैसे कि आपने टाइनिंग टेबल खरीद ली, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दिया है ईयर एंड पे, अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस पेड है, आपका फ्रिज है, आपके पास टीवी है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, सिर्फ मंथली भरने हैं, तो 500 रुपये में भी बहुत अच्छा इंटरनेट मिल जाता है इंडिया में पर मंथ के ऊपर। तो क्या होता है ना कि जो कि मंथली कॉस्टिंग है ना, अगर आपके पास कोई ईएमआई नहीं हो आपके ऊपर चल रहे हैं जो आपके ऊपर, तो बिकॉज मंथली कॉस्टिंग है वो काफ़ी लोग है यार, खाने पीने रहने का कॉस्टिंग कितना ज़्यादा नहीं होता। जब आप इंसान ड्रॉ डाउन में होता है ना तो इंसान बैठ के कपड़े नहीं खरीद रहा होता, ठीक है, तो वो अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा रहा होता है उस टाइम पे, वो सिर्फ खाना पीना कर रहा होता है। खाना पीना इंडिया में 20-25 हज़ार में आराम से हो जाता है ना। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप वो मंथली का सेट कर लो कि यार मेरे को इतना मंथली तो चाहिए, खाना पीना और नहाना धोना और अपना एक गाड़ी चलाना और ये सब करने के लिए मुझे इतना पर्टिकुलर पैसा चाहिए, बस इतना ले लो। क्योंकि इंश्योरेंस आप ले चुके हो हेल्थ का, सेविंग्स जो आपकी हैं, जो आपकी सम सॉर्ट ऑफ एक सेविंग्स होनी चाहिए वो आपकी बनी हुई है, उसी सेविंग्स को आप एफडी में डालो और उसी सेविंग की एफडी से आप ही पैसा जनरेट करो, ठीक है। तो आपको वो एक रेशियो जो है आपको मेंटेन करना है, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली 30-40 हज़ार रुपये आप कमाने के लिए ट्रेडिंग में नहीं आए हो, राइट। तो आप जो मेजर कैप्स है उससे आप ज़्यादा ही कमा रहे होगे, ठीक है, उसका वेरिएंस भी बहुत हाई होगा, उससे आप पैसे भी ज़्यादा कमा रहे हो। बट ये जो है ये सिर्फ आपके घर के खर्चे के निकालने के लिए तब है। अच्छा, इसको भी यूज़ कब करना है, ऐसा नहीं कि ये 40,000 हर महीना आप यूज़ कर दो, नहीं, इस 40,000 को री इन्वेस्ट करते जाओ एज अ रिस्क, मतलब इस पर आप वो वाला लो, लाइक अगर आप मान लो एफडी से जनरेट कर रहे हो 30-40 हज़ार रुपये, या आप वो क्या बोलते हैं अपना बॉन्ड से जनरेट कर रहे हो, तो जब जब वो पैसा क्रेडिट होता है तो उस पैसे को वापस वही री इन्वेस्ट करते रहो, उस पैसे को निकालने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ तब निकालना भाई जब डिस्ट्रेस सिचुएशन हो, ठीक है। बाकी टाइम तो आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट से निकालो। अगर मान लो आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट 2 लाख रुपए और आपकी जो ये वाली इनकम है वो 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ, ट्रेडिंग का प्रॉफिट पर मंथ 2 लाख रुपए, तो आपको अगर घर के खर्चों के लिए लाख रुपए लग रहा है, ट्रेडिंग से निकालो और लाख रुपए खर्च करो। कंपाउंड करने की जरूरत नहीं है, लाख रुपए कंपाउंडिंग में वापस डालो, ठीक है। टैक्सेस के लिए थोड़ा सा पैसा रख लो, बस दैट इज़ फुल टाइम ट्रेडिंग। ऐसा कुछ करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते आप, है ना। ये मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग से करोड़पति अरबपति ट्रेडिंग में बनने के लिए हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और इंसान की हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यूजुअली उसकी एज के स्टार्टिंग ऑफ द डेज में होती है, और या फिर वो फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्री है तब होती है, ठीक है, या फिर तो उसका दिमाग ही खराब है तब होती है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स भी जो रिस्क लेते हैं वो दिमाग खराब होते तो ही रहते हैं, उनको एक पता होता है कि इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, इतना रिस्क मैं लूँगा। तो जब आपके पास वो रिस्क सेट है, अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप जो पैसा कमा रहे हो फिर आप वो रिस्क करते जाओ बढ़ाते जाओ रिस्क, ठीक है। पर वो सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उस टाइप के माइंडसेट के जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम के लिए जो फुल टाइम ट्रेडिंग है वही 1-2% कमाना है पर मंथ, डायरेक्शनल सेलिंग करके या नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करके, बस, ठीक है। और उसी को री इन्वेस्ट करते जाना है, ठीक है। उसमें से छोटा पोर्शन री इन्वेस्ट कर लेंगे 30-40% पर मंथ, मतलब जैसे मान लो 2 लाख रुपए कमाया तो 70,000 रुपये री इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, और 30,000 रुपये 40,000 रुपये जो भी बन के आता है आफ्टर एक्सपेंसेस उसको टैक्स के लिए रख लिया, ये कर लिया और बस बात खत्म। मेजॉरिटी लोगों के लिए फुल टाइम ट्रेडिंग भैया भाई यही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो या सो बेसिकली ऐसे वर्क करता ही है। एंड अगर इसमें मतलब आपको कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना,
बट इससे ज़्यादा मुझे और कुछ याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर शायद मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ शायद इसलिए मेरे आइडियाज़ कम हो गए हैं। पर अगर आपने एक डिसेंट स्मॉल सी इनकम मंथली बना के रख ली है सिर्फ आपके घर के खाने पीने खर्चे के लिए और ये सब के लिए, क्योंकि आप घूमने तो नहीं जा रहे होगे जब आपका ड्रॉडाउन चल रहा होगा या फिर आपको बुरा वक्त चल रहा होगा, तो उसको तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पर अगर आप सिर्फ हल्का फुल्का फाइनेंशियली सिक्योर होना, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड है, वही इमरजेंसी फ़ंड से वो 30-40 हज़ार रुपये निकल रहे हैं ये ना, या फिर वो ज़्यादा हो गया 30-40 हज़ार पर मंथ ज़्यादा हो गया अगर इमरजेंसी फ़ंड के लिए, तो आप ट्राई करो कि जो भी आप ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ करो उसके मंथली से तो आ रहे उतना पैसा, है ना। और उधर उधर आपको ड्रॉडाउन फिर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखो अगर कुछ बड़ी चीज़ होती है तो आप तो ट्रेडिंग कैप डिप्लीट करोगे, विच इज़ फाइन यार, ट्रेडिंग कैप है ही उसके लिए, मतलब पैसा ही आपने उसके लिए कमा के अलग रखा था क्योंकि आप उसको कभी ना कभी यूज़ कर पाओ। तो अगर चीज़ें जा रही हैं बुरी लाइफ में तो आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कैपिटल डिप्लीट करते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इतना हार्ड नहीं लेना है चीज़ों को ज़िंदगी में, ऐसे कोई हार्ड एंड पास रूल्स नहीं बना देने हैं ज़िंदगी में। साला एसी नहीं चल रहा, हाँ, तो ऐसे हार्ड एंड पार्ट रूल नहीं बनाने हैं, ठीक है, ज़िंदगी में फ्लक्चुएटिंग रूल्स लेना इज़ ओके, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो सकते थोड़े बहुत रूल्स, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस आपको बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप देखो कि आप कैसे बनाते हो एंड देन आप मुझे बता दो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कोई डाउट हो तो। अगर आई थिंक मैंने कुछ मिस किया हो तो लेट मी नो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक। And yeah, that's it for this video. I would say I hope it helps you. If it doesn't, let me know whatever you want to know and what did I miss. And yeah, I hope in that video I can help you out. Till then, I guess bye bye, see you. Yeah, that's it.